हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो एंड लर्न कर रहे हो। इस सेशन में वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है फ्रॉम मोशन अंडर ग्रेविटी, बट देयर इज वन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, दैट इज वी आर काउंटिंग एयर रेजिस्टेंस हियर। ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हेन इट इज कमिंग बैक, आई मीन व्हेन इट इज its displacement is becoming zero. At that point of time its velocity is 16 meter per second. अगर air resistance count नहीं होता, it would have been 20 meter per second only. Done it? So this lessened velocity is because of air resistance, which is just like friction. ठीक है? So it will retard the body. नाउ फाइंड एयर टाइम ऑफ द बॉल, वी आर आस्क्ड कि हमें ये पता करना है कि ये कितने टाइम तक एयर में था। लेट्स से इट टुक T1 टाइम इन गोइंग अप एंड T2 टाइम इन गोइंग डाउन, बिकॉज नाउ वी कैनॉट से कि दोनों टाइम सेम होगा, क्योंकि while it is going up you just draw the FBD of ball. So mg force will act downward, and since its velocity is in upward sense, friction will act downward, opposite to the velocity, right? So let's say this air friction force is directly proportional, it is given to velocity. So proportionality constant को k ले लो, kv. ठीक है। सो kv यानी कि टोटल फोर्स एक्टिंग इज mg प्लस kv इन द डाउनवर्ड सेंस, एंड while the ball will be coming down, जब ये डाउन आ रहा होगा, velocity must be in which direction? In this direction. Now net force acting आप क्या लिखोगे? mg down, and friction will go opposite to the velocity, so in this sense, right? So here net force will be how much? Here it will be mg minus kv, net force in the direction of motion. And here net force is not in the direction of motion, it is opposite to the direction of motion, and that is equal to mg plus kv. सो दोनों ही केस में देखो एक्सेलरेशन डिफरेंट है, वी आर स्टार्टिंग विद डिफरेंट इनिशियल स्पीड्स, टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट, T1 एंड T2 हैज टू बी डिफरेंट। अब हमें सबसे पहले ना हम एयर टाइम निकाल लेते हैं जल्दी से। T1 प्लस T2 को एक साथ निकालेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट T1 सेपरेटली, T2 सेपरेटली एंड देन राइट थिंग्स, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट लेट अस कम टू द आंसर। So if you use here impulse thing, you will be easily getting the answer. जैसे देखो impulse में हम क्या करते हैं, delta p is equal to how much? That is equal to f dt, right? So for upward motion अगर मैं लिखूँ ये delta p, let's say for upward motion I'm writing it like for a small momentum change dp equal to force तुम्हारा क्या है? mg plus kv, and this is what dt. डन है। सो इसको आप इंटीग्रेट करो। सो डीपी चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे आप? 20 इंटू एम, क्योंकि 20 से जीरो हो रहा है वो। ठीक है। सो एम इंटू 20 सॉर्ट ऑफ, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एम जी डी टी प्लस के को कांस्टेंट ले लो, वी डी टी, 0 से T1। ठीक है। सो व्हाट आंसर्स यू विल बी गेटिंग हियर? 20m is equal to mg dt, I mean time is varying from 0 to T1, so mg T1 plus k vdt क्या है तुम्हारा? This is displacement, so integration of small displacement will be giving us total displacement. Let's say this height is h, so that will be equal to k into h, right? So this is what we are getting. डन है। सो अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान रहे? नेगेटिव। अब सेम चीज आप डाउनवर्ड के लिए लिखो, सेम डिस्प्लेसमेंट चेंज, इफ यू सॉरी सेम मोमेंटम चेंज थिंग। अगर डाउनवर्ड के लिए लिखते हो तो आप डीपी को क्या लिखोगे? आप लिखोगे mg माइनस kv dt. So if you write the total change in momentum, that will be mg dt minus kv dt. ठीक है। सो इसको अगर आप लिखोगे तो आप क्या लिखने वाले हो? डीपी। डीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 से स्टार्ट करके 16 तक गए हैं हम, सो ओवरऑल चेंज को लिख लेते हैं। m इंटू क्या लिखोगे आप? 20। if you write the modulus here, so m into how much? 16, sorry 16, right? Initial momentum was 0, final was how much? 16, m into 16, right? So this is this. अब ये क्या हो जाएगा? mg t2, because this dt 0 से t2 and this is 0 से t2. अब 0 से t2 में देखो k times minus k times v dt, again this is displacement, this will be equal to h, right? So यहाँ पे since हम we are writing everywhere magnitude, so I am just writing the magnitude everywhere. So v dt का magnitude क्या है? h के बराबर है, so minus kh, क्योंकि यहाँ भी में हमने magnitude ही लिखा है ना, फर्स्ट केस में भी हर जगह magnitude लिखा है, because we are doing integration, then a summation, scalar things we are adding up like this. So
क्योंकि डायरेक्शन का ऑलरेडी हमने टेक केयर कर लिया है यहाँ पे, फोर्स को इस तरह से लिखकर एंड फोर्स को यहाँ पे इस तरह से लिखकर, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज इन दैट सेंस। सो ये ऐसा आया। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो 1। अब उन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा देखो, 36m प्लस एम जी टी वन प्लस टी टू, और फर्स्ट में हमें ये क्या था, प्लस के एच था, ये माइनस के एच है प्लस 0। सो टी वन प्लस टी टू हमें मिल गया कितना, 36/10, दैट इज 3.6 सेकेंड। अब कहोगे मैम ये असेंट और डिसेंट में लिखना जरूरी था सेपरेटली? नहीं, आप सिंपल ऐसे लिखकर भी निकाल सकते थे, डीपी इज इक्वल टू, आई मीन सिंपल फोर्स को ले लो आप, आई मीन इस फोर्स का आप निकाल लो इम्पल्स, ग्रेविटी के फोर्स का इम्पल्स निकाल लो। सो दैट इज एम जी डी टी प्लस रेजिस्टिव फोर्स का इम्पल्स निकाल लो, सो दैट इज के वी डी टी। ऐसे भी हमें पता है दिस वी डी टी, इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 से टी वन प्लस टी टू में लिखते हो, इट विल बी कमिंग एज 0। सो ये अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। डीपी का मैग्नीट्यूड लिखो, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। सो आई एक्सप्लेन दिस मच सो दैट आई मीन आई कैन मेक इट मोर क्लियर टू यू कि डायरेक्शन को भी अकाउंट में लेकर करते हो, यू विल बी गेटिंग द सेम थिंग। सो यू कुड हैव डन इट विद इन 1 minute, आई वुड से, बाय यूजिंग सिंपली दिस वन, ठीक है। क्योंकि VDT आप जिस इंटरवल में भी लिख रहे हो, आई मीन दैट विल बी गिविंग यू दैट वैल्यू 0, राइट। अगर आपने T1 T2 के लिए लिखा तो H प्लस के एच माइनस के एच, वी गॉट दिस इम्पल्स, राइट। सो ओवरऑल ऐड होकर 0 ही हुआ, यहाँ भी ओवरऑल ऐड होकर क्या होगा, 0। सो जब भी तुम्हारा फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल दिख रहा हो एंड राउंड मोशन हो रहा हो, डन है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल से स्टार्ट होकर वापस से इनिशियल पॉइंट पे आ रहे हो, देन इम्पल्स ऑफ दैट विल बी बिकमिंग 0, सॉर्ट ऑफ। हियर वी आर सीइंग दैट अगर तुम्हें T1 सेपरेटली निकालना हो, T1 is equal to what, then what we will be doing। so यहाँ से अगर आपको T1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, राइट। क्योंकि देखो हमें सबसे पहले तो H नहीं पता, हमें K नहीं पता, हमें M नहीं पता, हमें बहुत कुछ नहीं पता है, राइट। सो लेट्स डील विथ एक्सेलरेशन थिंग। अगर आप असेंट की बात करो तो हमारा एक्सेलरेशन क्या था, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो एम जी प्लस के वी बाई एम, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। सो जी प्लस के वी बाई एम, के बाई एम को आप एक कांस्टेंट मान लो, जी प्लस के डैश वी, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं असेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो व्हेन बॉल इज गोइंग अप, सो इट हैज टेकन इन दिस इंटरवल T1 टाइम, डन है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस T1। ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो ना dv बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू g प्लस के डैश v। अब आप यहाँ से dv बाई g प्लस के डैश v कर लो, दिस इज दिस, एंड दिस विल बिकम हाउ मच, dt। 0 से T1 वेलोसिटी विल वेरी फ्रॉम 20 to 0 फॉर द असेंट, राइट। सो दिस विल दिस। अब देखो इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, g प्लस के डैश v को आप क्या मान लो, कुछ भी y मान लो सपोज। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, के डैश dv इक्वल टू dy, ठीक है। सो dv को आप क्या लिख सकते हो, dv को लिख सकते हो आप dy बाई के डैश। सो दिस विल बिकम dy, g प्लस के डैश v को आप y लिखो, क्योंकि हमने यहाँ पे वही अज्यूम किया है, 1 बाई के डैश। एंड इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे कितना आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे ln y यू विल बी गेटिंग, सो 1 बाई के डैश ln y का वैल्यू आप पुट कर दो, दैट इज हाउ मच, g प्लस के डैश v, this is this, and this will become how much, I mean limit you will be taking from where to where, 20 to 0, and this is equal to T1। so T1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा if we know k dash, राइट। देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही बकवास सा लिख दिया, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं डालना था यार, यहाँ डालेंगे ना ऐसे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अगेन लिमिट ये पूरे पे जाएगा ऐसे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, सो वी हैव टू बी क्लियर विथ मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे डाउन में क्या होगा, डाउन में आप फिर से एक्सेलरेशन को लिखो, क्या था तुम्हारा, g माइनस के डैश वी होगा, राइट। सो यहाँ पे भी dv बाई dt करोगे आप, g माइनस के डैश वी, अगेन dv बाई g माइनस के डैश वी आप करो, g dt, ठीक है। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से T2, क्योंकि इस टाइम को आप अब 0 मान लो और इसको मान लो क्या, T2 टाइम में ही वो नीचे आया था, राइट। So at t equal to 0, what is the velocity? That is 0. And at t2 time, what is the velocity? 16 meter per second. So limit will vary from 0 to 16 for velocity. इसका अगर आप निकालोगे इंटीग्रेशन तो 1 by k dash ln
जी माइनस के डैश वी, और इसके लिमिट को आप कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, 0 से 16, दैट विल गिव यू T2। अब आप बोलोगे मैम हम v का वैल्यू तो पुट कर देंगे, k डैश कहाँ है, k डैश हमें नहीं पता, राइट? सो k डैश वी कैन इजीली कैलकुलेट फॉर बोथ मोशन, सॉरी, वी कैन इजीली कैलकुलेट k डैश इन दिस क्वेश्चन। हाउ? देखो, दोनों असेंट और डिसेंट में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज सेम, so if we are able to calculate displacement for the ascent and displacement for the descent, that is while it is coming down, then we can equate these two displacements values, their magnitude, and then from there we can get k dash। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, सो एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, एक में लिखा g प्लस के डैश वी। सपोज यहीं पे पहले मैं करके दिखाती हूँ, सो इसको हम लिख सकते हैं ना v dv बाई ds, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, g प्लस के डैश वी। अब यहां से आप एक काम करो, v dv बाई g प्लस k dash v, right? And this will become equal to how much? Okay, is equal to ds, right? So velocity will vary here from where to where, again ascent में 20 से 0, राइट? अब देखो वी डी बी बाई जी प्लस के डैश वी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर दो ना, इसको एक काम करो, इसको ऐसा मान लो, सपोज कर लो अगेन जी प्लस के डैश वी तुम्हारा y है, ठीक है? सो v तुम्हारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा y माइनस जी बाई के डैश, राइट? सो यहाँ से इसको कुछ ऐसे कर देना, जैसे v डी वी, v की जगह क्या लिखोगे, y माइनस जी बाई के डैश, सो के डैश को तो मैंने बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाई जी प्लस के डैश वी, दैट इज वाई, एंड डीवी को आप क्या लिखोगे, अगेन यहाँ से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, यू विल बी गेटिंग के डैश डीवी इक्वल टू डी वाई, सो डीवी विल बी इक्वल टू डी वाई by k dash. So again you will be getting here k dash का square, and that will become how much, dy। so ये simple हो गया ना, 1 minus g by y, I mean something like that equal to ds, so you can integrate it, है ना? और अगर यहाँ पे सेम आप डाउन मोशन के लिए करो तो ये इक्वेशन क्या आएगा, v dv डिवाइडेड बाई g माइनस के डैश v इक्वल टू ds। इन दोनों इंटीग्रेशन को आप इक्वेट कर देना, अगर आप ऐसे भी इक्वेट कर लोगे ना, यू विल बी इन दोनों को आप ऐसे भी इक्वेट कर लो, ठीक है? एंड आफ्टर इक्वेटिंग दिस टू यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ के डैश, ठीक है? सो आई होप you are able to make sense of it, how to deal with such questions, and how to first calculate the time of ascent and descent together in one way, I mean t1 plus t2 को एक साथ कैसे निकाल ले, and after separately you can calculate t1 and t2 also, but that calculation will be a bit intensive, but if k value is given, that is very much easier, and m value, because k dash was what, k by m, right? So yeah, I hope you've understood this question, but if you have any doubt, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.